Hi students, a very warm welcome to this chemistry session. This is my last video of elements of group 1 and group 2. In this video, I am going to take some important compounds like H2O2 and lithium aluminium hydride. Now, if you have seen previous video, my previous video was also on important compounds, but वहाँ पे मैंने क्या-क्या cover किया था? I have covered washing soda, caustic soda and calcium carbonate. So if you have missed that, you can just go and see it on our channel. Now here in this video we are only going to solve MCQs which will be based on MSCT, and source of MCQs are from Marvels. So as you know, Marvel is the standard book which is prescribed for MHCT. So let me tell you one more thing कि 2021 का जो न्यू MHCT का जो मार्वल से वो पब्लिश हो गया है ऑलरेडी. सो यू कैन जस्ट गो एंड बाय इट फ्रॉम दी स्टोर्स. ओके, let's start. So we'll start with hydrogen peroxide. Now hydrogen peroxide का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HOOH. It's like a open book structure. इसको क्या बोलते हैं? Open book structure. Now what are the preparations? Preparations क्या है? So first preparation है. First preparation from बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड को एसिड के अंदर रिएक्ट करवाएंगे एट लो टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन. सो BaSO4 प्रेसिपिट होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होगा इन अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज बाय सोडियम पेरोक्साइड इज रिएक्टेड विथ solution of sulfuric acid at a temperature of 273 Kelvin. तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. ओके, द थर्ड मेथड इट इज बाय यूजिंग 50% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो अभी ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कंसिस्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड. इसके अंदर 50% H2SO4 को यूज किया है. Now this will get dissociated to H plus and HSO4 minus. Okay, now this H plus है, इसीलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा. सो कैथोड से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. Now HSO4 minus, it is negative, so it will attract positive electrode. HSO4 minus will give one electron and it will become HSO4. So 2 HSO4 will give you H2S2O8, that is peroxy disulfuric acid. Okay, now peroxy disulfuric acid का क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो क्या मिलेगा? H2SO4 and हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Okay, next is by auto oxidation of 2-ethyl anthraquinol. So this is anthracene. सेकेंड पे इथाइल का ब्रांचिंग है एंड हियर इट इज एल्कोहल. सो 2-ethyl anthraquinol इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन होता है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. सो H2 हैज कंबाइंड विद दिस O2 एंड इट हैज फॉर्म H2O2. बचा क्या? ये ऑक्सीजन. सो दिस विल बिकम 2-ethyl anthraquinone. 2-ethyl anthraquinone. Okay, so this is the preparation of H2O2. Now let's see its property. So property क्या है? फिजिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है? पेल ब्लू कलर का होता है. ओके, देन इट इज हाईली मिसिबल इन वाटर. देन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग and reducing agent in acidic as well as basic medium. Okay, and this is very important property of hydrogen peroxide.
अभी फॉर एग्जाम्पल Fe2+ को एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2+ जो है वो क्या हो जाएगा 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और अपने को क्या मिलेगा, वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना तुम लोग। नाउ 2+ is getting converted to 3+, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इसका इंक्रीज हुआ। So when oxidation number is increased, it is oxidation, and therefore H2O2 is acting as oxidizing agent. Now balancing अगर तुम लोग ने किया रहेगा तो this is 2, this is 2, 2 and 2. Okay, so just cross check your balancing. Now second reaction करते हैं जिसके अंदर MnO4- है in acidic medium in presence of H2O2, क्या मिल रहा है, Mn2+ plus water plus oxygen. So now here ये क्या हो गया, इधर कितना है Mn, what is the oxidation state of Mn over here, +7, +7 से +2 means क्या हुआ, इसका रिडक्शन रिएक्शन हुआ, मीन्स दिस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मैंने इसको एसिडिक मीडियम में बताया। सिमिलरली इन बेसिक मीडियम ऑल्सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या यूजेस है इसका। सो ये माउथ वॉश में यूज होता है, एज ए जर्मिसाइड यूज होता है, देन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। अभी ये क्या करता क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेट डिकम्पोज्ड to H2O plus nascent oxygen. Now this nascent oxygen reacts with organic matter. क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करता है, ऑर्गेनिक कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर के साथ में। तो ये क्या मिलता है अपने को, कलरलेस मैटर मिलता है। सो इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। देन H2O2 is also used in environment cleaning. ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डन, सीवेज का ट्रीटमेंट होता है H2O2 के यूज से। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी क्लोर, क्लोरीन को रिमूव करता है, इट इज यूज्ड एज एंटी क्लोर, इट रिमूव्स क्लोरीन। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसका यूज भी है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग agent. Then it is also used as preservative of milk, wine, etc. So this was all about hydrogen peroxide. Now next compound हम लोग जो करेंगे that is lithium aluminium hydride. So इसका preparation देखते हैं। lithium aluminium hydride कैसे बनता है, from LiH plus AlCl3 reacts to give lithium aluminium hydride plus LiCl. Okay, now let's start solving the MCQs. So first MCQ है, industrial preparation of H2O2 involves auto oxidation of, अब भी just किया था ना हम लोग ने, क्या था वो, 2-ethyl anthraquinol। क्या था, क्यूनॉल था कि क्यूनोल था, चेकआउट करो। इट इज, सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्यूनोन एंड क्यूनॉल ये दोनों भी ऑप्शंस में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अपने को इनिशियली OH प्रेजेंट होता है वहां पे, फिर ये H क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में, ये H और ये H इसके साथ कंबाइन करके अपने को प्रोडक्ट में H2O2 मिलता है। ठीक है, सो दिस इज क्यूनॉल। नेक्स्ट MCQ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्टिंग एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। अब क्या होता है ना, ग्लास बॉटल्स के अंदर
अल्कली ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट अगर उसको हम लोग थोड़े टाइम तक ऐसा ही स्टैंड बाय पे रख देते हैं या फिर सम मेटल्स के प्रेजेंट में भी वो क्या होता है, इजीली डिकम्पोज होता है। सो इट सिंस उसको अगर ग्लास बॉटल्स में हम लोग रखते हैं तो ग्लास में क्या होता है, अल्कली ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो अल्कली ऑक्साइड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देते हैं। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। So that's why it is not stored in glass bottle. So where it is stored in Teflon bottle. प्लास्टिक की जो टेफ्लॉन की बॉटल्स होती है उसमें उसको स्टोर करते हैं। वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखते, उसको डार्क में रखते हैं। इन सनलाइट के प्रेजेंस में भी मीन्स वो हीट से भी उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं एंड इट गेट डिकम्पोज। सो इट इज स्टोर्ड इन डार्क in Teflon bottles. So it alkali oxide present in glass catalyzes its decomposition. Okay. See, next question. Hydrogen peroxide is always stored in black bottles called, तो जो टेफ्लॉन होता है वो ब्लैक कलर का होता है. So it undergo octo oxidations on prolonged standing. Now one important question. 10 volumes of hydrogen peroxide means, अब ये जो 10 वॉल्यूम है इट इज मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड will give you 10 liters of oxygen. Or you can also write down 1 ml of hydrogen peroxide will give 10 ml of O2. Or you can also write down 1 centimeter cube of hydrogen peroxide is giving you 10 centimeter cube of oxygen. अभी सपोज 20 वॉल्यूम रहेगा तो 20 वॉल्यूम क्या बताएगा, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन. ये भी ऑफ कोर्स है, दिस इज आल्सो अ सोल्यूशन. और ये डिकम्पोज होगा और अपने को क्या मिलेगा, 20 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, H2O2 is giving you H2O plus O2. तो 10 वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है, इफ दिस इज 1 लीटर, ये 1 लीटर का सोल्यूशन है तो ये क्या करता है, 10 लीटर्स ऑक्सीजन देता है. ओके, सो जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस. क्या आएगा, 1 centimeter cube of solution liberates 10 centimeter cube of oxygen at STP. Next question. Hydrogen peroxide act as oxidizing agent in acidic and alkaline medium both. Next question. What is the mass of hydrogen peroxide in 1 liter of 3 molar solution? So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्या फॉर्मूला है, चलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो मोलैरिटी इज 3. ओके, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर. तो कितना आता है मोल्स ऑफ सल्यूट, 3 मोल्स. अब 3 मोल्स है, मोल्स इज मास अपॉन मोलार मास. नाउ मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 34. सो कितना आएगा आंसर, मास इज 3 into 34, दैट इज 102 ग्राम्स. सो आंसर क्या है, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The strength of 20 volume of hydrogen peroxide. अब 20 वॉल्यूम, सबसे पहले बताओ मुझे 20 वॉल्यूम का क्या रीड करेंगे हम लोग, 1 लीटर ऑफ H2O2 solution gives 20 liter of oxygen. ओके, अभी आगे H2O2 is giving you H2O plus O2. So this is 2 and this is 2. Now
वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये देखो यूनिट्स देखो सब, ग्राम पर लीटर मीन्स मास कैलकुलेट करना है. और इसका वॉल्यूम अपने को पता है. व्हाट इज द वॉल्यूम? ये कितना है? 20 liters. So 2 moles of H2O2 is giving you 1 mole of oxygen. 2 moles का मतलब होता है 2 into 34. This will become 1 into किस में करेंगे इसको कन्वर्ट? वॉल्यूम में. क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम दिया है. So this will become 1 into 22.4. तो 20 लीटर्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो चलो फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लो एंड पॉज करके फिर आंसर मेरे साथ में चेक कर लेना. नो वन विल यूज कैलकुलेटर. तो कितना आ रहा है इसका आंसर? इट इज कमिंग 60.7 ग्राम पर लीटर. सो इसका आंसर क्या है? ए. Okay, so this was my last video on this chapter, and this was my last MCQ of this video. So elements of group 1 and group 2 is done from my side, and for preparation you can always take help of my videos. But तुम लोग को अभी ये chapter कैसा है? It is completely theory chapter, so you should read each and every line of your textbook, and सिर्फ रीड नहीं करना है, वो लाइन को अंडरस्टैंड करके लेना है. बिकॉज कोई भी लाइन से कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है. बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ माय वीडियोस फॉर योर रेफरेंस. ठीक है. सो पसंद आया रहेगा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इसको. कैच 25 साइंस एकेडमी. My next video will be on adsorption and colloids. Okay, so see you in next video. Chalo then, bye bye, take care all of you.